Hi everyone. So let's look at this graph of quadratic equation. How to draw the graph of quadratic equation here. Okay. So let's say I have any quadratic equation. Let's say y is equal to x square plus 7x plus 12 is a quadratic equation. So what I'll be doing here is I'll be just putting this x square plus 7x plus 12 equal to 0. So if I put y equal to 0, I'll find the roots of the equation. Okay, so if I equate it to 0, I'll be getting, I can just solve for this x7x here. So it should be x plus 3 into x plus 4 is equal to 0. And I'll be getting x equal to minus 3 and minus 4. Okay, so that basically means that we have a quadratic here. Okay, and the graph is actually intersecting x-axis at minus 3 and minus 4. Now that's the meaning of this thing here. Okay, so basically now I know that graph of any quadratic is always a parabola, because the graph of any quadratic is always like this. Okay, opening like this. Okay. Just a minute. This is a graph of quadratic here. Okay, when a is positive, so any quadratic equation with ax square plus bx plus c equal to 0, its graph is always a parabola if a is positive. Okay, it just got a parabola shape actually, and then a is negative, graph is inverted like this. Okay, so just study about this graph a bit. Okay, so for example, if the graph is cutting at x equal to minus 3 and minus 4, and one time I'll put y equal to 0, the other time I'll put x equal to 0. Okay, so if I put x is equal to 0, I'm getting y equal to 12. So what I know that from where the graph is passing, so when y is 0, minus 3 and minus 4, let's say that this point is, let's say this point is minus 4 and minus 4 0, and let's say it is minus 3 0. Okay, there's through 2 points here, and one point, let's say this point is 0 comma 12. Okay, this point x is 0, y is 12. Okay, so how the graph will pass, the graph shape will be something like this. Okay, like this. Okay, not exactly touching, just a minute. So graph shape will exactly be like this, somewhere like this. Okay, this is how you draw the graph of a quadratic equation. Okay, so it's a parabola. I know it's a is 1 here, so a is positive, so graph will be opening upward. Okay, like this, है ना? So this is the graph of any quadratic equation I can draw like that. Okay, so when y is positive, when y is equal to 0, so when a is positive, graph will open like this, graph will open downward like that. Okay, if a is negative. So now let's try to understand a few things in this graph here. Okay, so what basically this graph actually means here. Okay, now see, let's say for example I have a quadratic equation. So this is minus 4 and minus 3. So what I can see from this graph here is this is actually the lowest point of the graph, and this graph is absolutely symmetric here. Okay, that means let's say this point here, it should be the midpoint. It is minus 4, it is minus 3. Now this point should be minus 3.5. Okay, so this is the lowest point of the graph here. So what I can observe that the minimum of any quadratic equation, I'm getting at x equal to minus 3.5. So at x equal to minus 3.5, minimum I'm getting on this quadratic equation here. Okay, so that's how you draw this kind of graph, right? So this is the graph here in this kind of shape. This is a parabola shape. This is minus 4, this is minus 3, and this is minus 3.5. Okay, so now get this point. After that, if I try to find the minimum value of y, so if suppose I'm trying to find the minimum value of y here, so y minimum is supposed to occur at the middle value of these roots here. Okay, minus 3 and minus 4. So y minimum will occur at x equal to minus 3.5. Okay, that means if I put minus 3.5 in the equation, I'll get a minimum value of y. So minus 3.5 means minus 7 by 2. That means I can get what is the minimum value of y? That will be equal to minus 7 by 2 whole square plus 7 into minus 7 by 2, and this is plus 12. So I'll get the minimum of this quadratic equation here. Okay, that's one thing. Okay, now obviously now try to get this part, guys. So for example, if I'm drawing a graph here, okay, so let me draw the same graph. So if I'm drawing a graph here, basically like this is a graph passing through minus 3, minus 4 and 12.
So what I'm seeing here is same graph. Okay, so what I'm seeing here is, now let's say this root is alpha, now this root is beta. So where is the middle point of the middle point of the graph will lie? So I told in last slide, -3 and -4, middle point was -3.5. So I can say that if it is alpha and beta, the middle point is what? This point is alpha plus beta by 2, है ना? So this middle point is alpha plus beta by 2. Now I know that sum of roots in any quadratic equation, sum of roots in any quadratic equation, now that is equal to how much? That is equal to alpha plus beta is equal to minus b by 2a. Okay, so if I try to replace this, so I know that if we have any quadratic equation, y is equal to ax square plus bx plus c, and y minimum will, when it will occur, so it has to occur when x is this point, x is alpha plus beta by 2. Now what is alpha plus beta by 2? So alpha plus beta is minus b by 2a, so alpha plus beta by 2 is minus b by 2a. That means the minimum of this quadratic will occur at minus b by 2a. So I can generalize it that y minimum will always occur at x equal to minus b by 2a. Okay, so will always occur at x is equal to minus b by 2a. That's how any minimum of quadratic will occur. Okay, directly I can put, right? So let's in last equation, my equation was y is equal to x square plus 7x plus 12. If I directly put x equal to minus b by 2a, so x equal to minus b by 2, it is minus 7 by 2. That is equal to minus 3.5. That's how I got, right? I got minus alpha plus beta, it is minus 4 minus 3. If its half was minus 3.5. Okay, so that's the funda of any quadratic equation. Okay, so you can draw the graph like this, and then you can see where is the minimum and maximum of any quadratic here. Okay, now let's try to solve a couple of questions here. Okay, before doing question, one more thing, guys. Okay, so let's draw this y-axis, x-axis, y, then x. Okay, then this is the graph. So this is basically the graph of e रेज टू एक्स. ठीक है, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू e रेज टू एक्स का ग्राफ है. ठीक है, और अब ये पॉइंट यहाँ पे क्या, दिस पॉइंट इज 0,1. ओके, नाउ इन माय क्लासेस आई रेफर दिस ग्राफ एज आवर ग्राफ ऑफ द लाइफ. ओके, ये हमारा लाइफ का ग्राफ होता है बेसिकली, एंड इट्स ट्रू एक्चुअली, राइट? अब देखो कि e की पावर x का जो ग्राफ होता है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी लेस पॉइंट. ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, वेरी ऑलमोस्ट टचिंग द x एक्सिस, हाँ, फ्रॉम वेरी लो, एंड it is going till 0,1. Through long time, through all the negative x-axis, it starts from almost 0 and ends at 1. Once it crosses the y-axis, it increases very sharply. Okay, this is the graph of our life. For example, if you're working hard for this MBA preparation, आपने MBA prep के लिए hard work कर रहे हो, CAT के लिए कर रहे हो, अब बहुत hard prep, ठीक है, आपने बहुत low से start किया, started from such a low point, now आप इसमें धीरे धीरे मूव कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद कहीं मॉक में लो स्कोर आ रहे हैं, कभी आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो बेसिकली आप ना इसी लाइन पे हो अभी तक. द मोमेंट यू रीच दिस पॉइंट ना, दिस इज थ्रेशोल्ड पॉइंट, उसके बाद आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे बढ़ेगा लाइफ का. हाँ, इट विल इंक्रीज सो शार्प, राइट? यही हमें समझना पड़ेगा कि हम यहाँ बेसिकली थ्रेशोल्ड पॉइंट से कितने दूर है अपने लाइफ में. ओके, सो वी नीड टू कीप वर्किंग हार्ड टिल वी रीच दिस पॉइंट हियर. हाँ, दैट्स द बेसिक फंड ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू x. तो ट्रीट इट लाइक ग्राफ ऑफ योर लाइफ. हमेशा सोचो कि मैं इस वाले पे मेहनत पे, इस वाले पार्ट पे भी हूँ. ठीक है, जैसा वो सक्सेस नहीं मिल जाता, और इस पार्ट पे जब आप रहोगे तो आपको रिजल्ट बहुत स्लो मिलेगा. व्हेन यू आर ऑन दिस पार्ट हियर, द रिजल्ट इज रियली स्लो, वेरी स्लो रिजल्ट, बिकॉज इंक्रीज नहीं हो रहा है. आप पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट नॉट गेटिंग दैट the required result, right? Putting a lot of effort, right, but not getting that result actually. So but you don't know. आप मान लो सपोज आप गिव अप करते हो, ठीक है, एंड लेट्स से यू आर एट दिस पॉइंट राइट नाउ. अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया है और आपने गिव अप कर दिया. एंड पता चला कि थ्रेशोल्ड पॉइंट बहुत कम दूर से आपने मिस कर दिया, गिव अप, बिकॉज आपने क्या किया, आपने गिव अप कर दिया. सो डोंट गिव अप गाइज. ओके, सो यू नेवर नो, मे बी हमें इस पॉइंट पे पहुँचना है, मे बी हम इस पॉइंट पे बहुत हार्डवर्क करेंगे, एंड मे बी हम इस पॉइंट पे कब पहुँच सकते हैं, on 26th of November, just 1 or 2 days before CAT, right? Then our CAT will go really good.
सो आपको नहीं पता लाइफ में आप अपना थ्रेशोल्ड वाला ये पॉइंट कब रीच कर रहे हो। ओके, तो जस्ट टिल देन जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। सोचो कि जब ये फेज में रहेंगे तो हम हार्ड वर्क बहुत करेंगे बट मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट उस हार्डवर्क का जब आपका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पहुंचेगा उसके बाद देयर सक्सेस विल जस्ट फॉलो यू। ओके, दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड गाइस, राइट। चलो नाउ लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। द क्वेश्चन हियर सेज दैट फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू x रेज टू 4, है ना। तुम्हें निकालना है कि e रेज टू x और x रेज टू 4 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा। निकाल सकते हैं आप इजिली, राइट। देखो क्या करोगे बेसिकली आप। सो नाउ आई विल जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस e रेज टू x हियर, द ग्राफ ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। एक्चुअली ट्रू, ग्राफ ऑफ आवर लाइफ। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेज टू x starting from almost minus infinity and after y-axis it reaches y-axis, it increases very sharply. Okay, x-axis, y-axis, right? And अब देखो हमारे पास क्या है, x raised to 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। what is x raised to 4? so y, if you look at this part, y is equal to x raised to 4. तो y is equal to x raised to 4 क्या होता है, जब आप x को 0 पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा, है ना। that is passing through origin, ये पावर 4 है, that means something it is like x square का स्क्वायर। हाँ, सो ग्राफ विल बी इन द शेप ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली। ओके, ग्राफ आपका एक्स स्क्वायर का ही शेप का होगा, थोड़ा स्लोप ज़्यादा होगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इफ यू कंपेयर दीज टू ग्राफ्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4, एट x इक्वल टू 1 आपको y 1 ही मिलेगा, बट एट x इक्वल टू 2 आपको y मिलेगा 4 इस केस में, और x इक्वल टू 2 अगर पुट करोगे तो आपको यहाँ पे इस केस में y कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा, है ना। x1 y1 at y2 you'll get x16 here, right? तो ग्राफ बहुत शार्पली इंक्रीज कर रहा है ना। सो x आपने x को 2 पुट किया y4 मिल गया, आपने x को 3 पुट किया या 3 का स्क्वायर y9 मिल गया। बट यहाँ क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे x को 3 पुट किया तो गेटिंग y81। तो शेप वही होगा बट इंक्रीज बहुत शार्प होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सपोज ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, लाइक दिस, थोड़ा फ्लैट ग्राफ है ना। इस ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा y एक्सेस है, फिर x एक्सेस हियर फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ग्राफ ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब y इक्वल टू एक्स के बाद 4 ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो बहुत आपका शार्प, थोड़ा शार्प हो जाएगा इससे। हाँ, द शेप विल बी लाइक दिस। ओके, सो अ बिट शार्पर देन दिस y इक्वल टू एक्स रेज टू 4, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे शार्प इंक्रीज कर रही है, राइट। ओके, सो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ हियर ऑल्सो, मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ देखूँ मुझे क्या मिलेगा, इफ आई एम ड्रॉइंग दिस y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 ईयर। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस, ऐसा कुछ होगा। हाँ, सो ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस। अब बात आता है यहाँ का, है ना। ये बात आता है यहाँ कि आपका ये ग्राफ कैसे पास करेगा, राइट। ये ग्राफ आपका इसके थ्रू पास करेगा, ये इससे कट हो जाएगा, या इससे कट नहीं होके ग्राफ आपका ऐसे निकल जाएगा, है ना। ये मुझे नहीं पता, राइट। मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, मुझे दिस पार्ट आई डोंट नो, वी डोंट नो हियर, राइट, कि व्हाट विल हैपन, इट विल कट और इट विल गो पैरेलली, राइट। तो मुझे ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूँ एट दिस पॉइंट y एक्सिस मीन्स क्या होता है, x इक्वल टू 0, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो y की पावर x का ग्राफ है, सॉरी y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, वो x की पावर 4 के ग्राफ देखोगे यहाँ पे आप, सो इट इज़ अबव दिस ग्राफ ऑफ x रेज टू 4, है ना। ये x की पावर 4 ग्राफ ऊपर है एट दिस पॉइंट, राइट, एट दिस पॉइंट। थोड़ा हाई वैल्यू में चेक करते हैं, लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यू सम वैल्यू, लेट्स से x को हम यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं, देखते हैं x5 पे क्या हो रहा है। अगर हम x5 पे ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन नाउ y इक्वल टू x इक्वल टू 5 है, राइट। नाउ y इक्वल टू e रेज टू x, ओके। नाउ e इज रफली मैथमेटिकल वैल्यू इज 2.7, सो 2.7 रेज टू 5 हो गया रफली, राइट। अच्छा, और ये तो आपका क्या है, x की पावर 4 है, सो अदर ग्राफ इज y इक्वल टू x की पावर 4। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे मैंने x को 5 पुट किया है, इट बिकम समथिंग लाइक 5 की पावर 4। नाउ 3 की इवन अगर मैं 2.7 को अगर मैं 3 भी मान लूँ, सो इट इज़ बेसिकली रफली इक्वल टू 3 की पावर 5 कितना था, 243 होता है। नोटिस 5 की पावर 4 इट इज 625। तो कहने का मतलब है कि ये जो x की पावर 4 का ग्राफ है ना, ये e की पावर x के ऊपर है। ये कहाँ पे, e की पावर x के ऊपर है, राइट। मतलब ये पहले आपका ग्राफ जो e की पावर x का ग्राफ था, इट वॉज अबव दिस x रेज टू 4,
Now what has happened actually? The graph of y equal to x raised to 4 is having a greater value. This is 625, this is 243. So 625 is greater than 243. That means at x equal to 5 क्या है, x की पावर 4 का ग्राफ इज ग्रेटर देन e की पावर x. तो x इक्वल टू 0 पे जो x रेज टू 4 का ग्राफ था, द ग्राफ ऑफ x रेज टू 4 was the graph of x raised to 4 was this below this e raised to x का ग्राफ, और x इक्वल टू 5 पे x raised to 4 का जो ग्राफ है वो आपका e की पावर x से ऊपर है. मतलब ये ग्राफ नीचे से ऊपर गया है. तो अगर ये ग्राफ नीचे से ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं बीच में कटा होगा एक बार तो, right? So this graph is actually, this graph at x equal to 0, the x raised to 4 graph is below e की power x, right? So it has gone from this, earlier it was down when it's down with respect to e की power x, and now it is up at x equal to 5. It has the value is greater than e की power x, right? That means what will happen, at some point the graph will cut, है ना. तो ग्राफ बेसिकली पक्का कट करेगा, तो आपका ग्राफ कुछ फाइनली ऐसा बन रहा होगा, ठीक है. सो ग्राफ विल समथिंग भी लाइक दिस, ऐसा. मतलब थोड़ा आई शुड मेक लाइक दिस यार, ठीक है. थोड़ा एक मिनट. Something like this, right? This is graph of e के power x, this is graph of y equal to x raised to 4. So we'll get 2 points here, ठीक है. हमें 2 पॉइंट मिलेगा. So number of solution means ग्राफ में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं. ओके, सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज 2 सॉल्यूशंस. दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So I hope all of you got this. Okay, now let's do one more question here. Find the number of solutions of sin x is equal to x square plus x plus 1. Okay, again number of solution में इसकी दोनों ग्राफ में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, राइट. नाउ सी हाउ विल सॉल्व सच क्वेश्चन हियर. तो देखो, यू नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. और इसको आप फैक्टराइज करके रूट भी नहीं फाइंड कर पाओगे, है ना. तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट टू, बिकॉज वी कैन नॉट फैक्टराइज इट, फाइंड द रूट्स, क्योंकि आपके यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ना. यू कैन नॉट ब्रेक इट 2x एंड x और समथिंग लाइक दैट, राइट. इसके आपके जो रूट्स होंगे इरेशनल नंबर होंगे. ओके, सो if I cannot break any quadratic and to find the roots, actually हम लोग क्या करेंगे, we'll try to convert into some perfect squares को ना, हम perfect square में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है. तो ग्राफ देखने में ईजी होता है. तो फॉर एग्जाम्पल देखो ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना. सो नाउ यू ट्राई टू कन्वर्ट इट फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab परस्पेक्टिव, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस x if I compare with this. तो अभी आपको क्या दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स है. सो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज कि a की जगह x है, सो a इक्वल टू x, है ना. b की जगह 1 है, b की जगह एक्जैक्टली 1 नहीं है. आपको b का आपको ये कांस्टेंट टर्म चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म एडजस्ट कर सकते हैं, वेरिएबल को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना. तो यहाँ पे 2ab है, तो आपको पता है कि 2 है, a और x है, और कोएफिशिएंट 1 है. दैट मीन्स 2b इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स b इक्वल टू हाफ है. तो a अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेसिकली आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर था. तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या बोलूँगा, व्हाट आई ट्राई टू से हियर इज, और व्हाट आई ट्राई टू राइट हियर इज कि आपका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a इज x एंड b इज हाफ. ओके, सो इन दिस केस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इज x एंड b इज हाफ, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर. नाउ वंस यू ब्रेक दिस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, देखो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस x, है ना. तो अभी टोटल वैल्यू तो यहाँ पे 1 था, दैट मीन्स 1/4 अंदर में, तो बाहर कितना बच जाएगा, 3/4 बच जाएगा. सो व्हाट आई कैन राइट इज x प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है. सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस, राइट. सो व्हाट आई कैन राइट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, है ना. So this is how I can break it, right? Okay, I'll just explain 2-3 things here, ठीक है. आपको clarity आएगा ऐसे questions का. So x plus half का whole square plus 3/4, right? Let me rub this.
Okay, so what we wrote here, guys? So we wrote that x square plus x plus 1 will be equal to x plus हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, है ना? देखो, अच्छा ग्राफ ऑब्जर्व कर, देखो कैसे ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना? आपको ड्रॉ करना है, लेट्स से आपको यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, राइट? तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है? सो इट रिजेंबल्स विद ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली। देखो चेंज क्या आएगा, तो ऐसा आपको पता है कि ग्राफ ऑफ आपका व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये आपका ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, दिस इज y एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है? दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ में क्या होता है, एट x इक्वल टू 0 आई विल बी गेटिंग y इक्वल टू 0, ये मेरे को मिलेगा, राइट? इसके बाद अब मुझे बनाना है y इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। सो इफ आई एम ट्राइंग टू मेक हियर y इक्वल टू एक्स प्लस हाफ स्क्वायर होल स्क्वायर का ग्राफ, देखो ये ऐसा आएगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। सो ना अब क्या हो रहा है, देखो अब आपका जो पहले y x को 0 पुट करने y 0 आ रहा था, देखो अब कब हो रहा है, अब x को माइनस हाफ पुट करने पे y 0 आ रहा है ना? y कब 0 होगा, एट x इक्वल टू माइनस हाफ। इफ आई वांट टू ड्रॉ ओनली दिस, डोंट लुक एट 3/4 हियर, ओके? तो x को माइनस हाफ करेंगे तो y 0 आएगा, है ना? तो दैट मीन्स ग्राफ कब आएगा, देखो ये आपका लेट्स से पॉइंट है माइनस हाफ कॉमा 0। तो बेसिकली आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, y दिस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर का ग्राफ, समथिंग लाइक दिस, है ना? समथिंग लाइक दिस, राइट? ऑब्वियसली क्योंकि वही वाला बात हो गया आपका, क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर है तो x इक्वल टू माइनस हाफ पुट करने पे y 0 आएगा, और x को 0 पुट करने पे क्या आएगा, देखो x को 0 पुट करने पे y आपका 1/4 आएगा। तो y आपका यहाँ पे आएगा, x को 0 पुट किया, सो 0 प्लस हाफ का स्क्वायर, y इज 1/4। दिस पॉइंट इज 0,1/4, ऐसा ग्राफ है ये। अब आप क्या करते हो ना, इस ग्राफ पे 3/4 ऐड कर देते हो। देखो तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि पहले मेरा ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर था। अब ना मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें 3/4 ऐड कर दे रहा हूँ। तो 3/4 ऐड करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे x को टच तो नहीं किया, मैंने y में 3/4 ऐड कर दिया, राइट? तो जो मेरा y ग्राफ था, मैंने y एक्सेस में ऐड किया तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, हाँ? तो ग्राफ विल बेसिकली बिकम लाइक दिस। तो ग्राफ बेसिकली आपका ऐसे दिखेगा, देखो ग्राफ विल यू कैन सी लाइक दिस, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ओके? समथिंग लाइक दिस प्लस 3/4। सो ग्राफ ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, so ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ओके, ऐसा पास तो पास थ्रू लाइक दिस यार, ऐसा कुछ, राइट? दिस इज पासिंग थ्रू 0,1, क्योंकि आपने यहाँ पे x को 0 पुट किया, सॉरी y को, हाँ x को 0 पुट किया तो आपका y 1 आ गया, या आपने y को 0 पुट किया तो x कितना आ रहा है आपका, तो y को 0 पुट करने पे आपका x तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, कुछ ना कुछ, इट वोंट बी दैट नेगेटिव वैल्यू, राइट? बिकॉज तुम्हारा ग्राफ क्या है, 3/4 अप है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे y को 0 पुट करोगे तो ग्राफ देखोगे कि आपका ऑब्वियसली ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि हमारा x प्लस हाफ का स्क्वायर ही क्या था आपका, ग्राफ वॉज जस्ट टचिंग दिस हाफ माइनस हाफ 0। तो 3/4 ऐड करने पे ग्राफ क्या हो गया, ये आपका 0,1/4 था। अब ना ग्राफ आपका यहाँ पे आ गया, 0,1 आ गया, मतलब जो ग्राफ है आपका वो 3/4 ऊपर शिफ्ट कर गया, है ना? सो ग्राफ इज एक्चुअली शिफ्टेड बाई 3/4 बिकॉज आई हैव एडेड 3/4 इन दैट ग्राफ, ओके? सो ग्राफ हैज शिफ्टेड अप बाई 3/4। तो ये माइनस हाफ पे था, तो ये माइनस हाफ पे ग्राफ 3/4 ऊपर शिफ्ट कर गया इस पॉइंट पे, है ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके? ये एक चीज़ हुई, राइट? तो बेसिकली आपको ये बिल्कुल पॉइंट मिल गया कि आपका ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली 3/4, ये आपका पॉइंट क्या है, 3/4 है ना, 0,3/4 है, ओके? तो दैट्स द ग्राफ, दैट्स बेसिकली द ग्राफ। सो लेट मी ड्रॉ अगेन दिस वन गाइस, ठीक है? उसको वापस ड्रॉ करता हूँ मैं समझ के, ओके? सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ, सो बेसिकली मैंने क्या बोला कि आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, हाँ? तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर का, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। y इक्वल टू हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें फाइंड करना है साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना? हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने लिखा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, मतलब ग्राफ आपका, ये आपका ग्राफ हो गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, दिस द ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, सॉरी, हाँ ठीक है, दिस द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, है ना? दिस ग्राफ इज माइनस हाफ कॉमा 0। हमें क्या ड्रॉ करना था, एक्स प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4, तो ग्राफ क्या होगा, 3/4 ऊपर शिफ्ट करेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस,
shifted 3/4 above, this is 0,1 है ना, and this is आपका माइनस, ये तो आपका कितना है 3/4 है, this is 0,3/4. ओके, नाउ आई हैव टू सी कि आपका ग्राफ sin x से कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा. ओके, तो फ्रॉम sin x it will intersect how many times, right? So if I draw the graph of sin x, ऑब्जर्व करना, this point is -half 0. Now sin x का ग्राफ ऑब्वियसली इसके राइट साइड में ऐसा जाएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ sin x, राइट? आपका यहाँ पे साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, तो sin x का आपका रेंज आता है, ये आपका 1 है, एंड दिस इज -1 समवेयर लाइक दिस, राइट? इसलिए -1 हियर. ओके, लेट मी ड्रॉ दिस इज -1. ओके, नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ ग्राफ को, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा कि sin x का ग्राफ मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, नो, समथिंग लाइक दिस, राइट? ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ग्राफ आपका ऐसे आएगा. अब ये आपका देखो पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपको पता है कि sin x कहाँ पे आता है, तो sin x का जो वैल्यू है देखो वो आपका नीचे कहाँ पे आता है, यू शुड नो, राइट? राइट, तो आपको पता है कि sin π/2 90 डिग्री पे आपका 1 होता है ना, सो sin π/2 पे आपका 1, दिस इज π/2 पे आपका वैल्यू 1 आता है. व्हाट इज π/2 इन पॉइंट? सो π/2 इज बेसिकली हाउ मच, 3.14/2 इज रफली 1.57. तो ये पॉइंट आपका माइनस आपका क्या आएगा, अगेन -π/2 आएगा, दैट इज रफली -1.57. तो ये आपका -0.5 है, ये आपका -1.57 है ना? तो आपका जो ग्राफ है ये आपका π/2 इज 1.57/2, तो दिस रफली अराउंड पॉइंट काइंड ऑफ 0.8, राइट? तो माइनस पॉइंट, ऐसा अगर आपका -1/2 है तो ये -0.8 पे आपका ग्राफ नीचे आएगा, है ना? तो मान लो ये आपका -1/2 है ये वाला पॉइंट, तो -1/2 इज -0.5, ये -0.8 पे नीचे आएगा यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस. ओके, और ये ऐसे पास कर जाएगा, इज द ग्राफ ऑफ sin x, है ना? पासिंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इन दिस केस द ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस एंड इट वोंट हैव एनी सॉल्यूशन, है ना? क्योंकि आपका ग्राफ यहाँ पे निकल गया एंड साइज का ग्राफ निकल जाएगा इस तरीके से, तो आपको क्या दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे. सो sin x और x² + 1 के ग्राफ में देयर इज नो सॉल्यूशन. तो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नो सॉल्यूशन. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. ओके, तो ठीक है, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. थैंक यू.